Past few weeks looking at the aspect of offering ourselves to God as a living sacrifice. पिछले कुछ हफ्ते से हम देख रहे हैं अपने आप को परमेश्वर के लिए एक जीवता बलिदान करके चढ़ाना। The first 3 weeks we spoke about offering a body as a living sacrifice. और पहले 3 हफ्ते हमने देखा कि अपने शरीर को जीवता बलिदान करके चढ़ाना। And we spoke about, first of all, the eyes of us, of our eyes, then our ears, and then our tongue. पहले हफ्ते हमने देखा था अपनी आंखें, फिर अपने कान, और फिर हमने देखा अपनी जीभ के बारे में। And then last week we spoke about the heart of man. और पिछले हफ्ते हमने मनुष्य के हृदय के बारे में बात करी। The heart of man or the spirit of man. मनुष्य का हृदय या मनुष्य की आत्मा। Now it's important to understand that the link between eye, ear, and the heart is the mind. और हमें ये बात समझना है कि जो कान और आंख और जो मन है, हृदय है, उसके बीच वो सब जुड़े हुए हैं। What we see, we process in our minds. जो हम देखते हैं उसको अपने हृदय में, अपने मन में हम उसको हम प्रक्रिया में लाते हैं, सोचते हैं। What we hear, we process in our minds. जो हम सुनते हैं उसे भी अपने मन में हम उसका मनन करते हैं। We keep on thinking about what we see and what we hear, from the mind it goes into the heart. जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, उसको अपने मन में हम उसे मनन करते हैं और वो हमारे हृदय में जाता है। And in Jeremiah 4:14, the Lord says to his people, O Jerusalem, wash the sin from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? और इसलिए परमेश्वर यह यिर्मयाह 4:14 में कहता है, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? Talks about the heart and the mind. What you keep on thinking in the mind goes into the heart. वो उनके हृदय और उनकी मन की बात करता है कि जो वो कल्पना करते हैं वो उनके हृदय में जाता है। And in the book of Proverbs, chapter 4, verse 23, we read, it's written there, guard your hearts for the wellspring of life. और इसलिए नीतिवचन 4:23 में भी लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So the Apostle Paul wrote to the church in Corinth, in 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. और फिर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए 1 कुरिन्थियों 2:16 में कहता है, हमारे में प्रभु का मन इससे जाना कि उसकी सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। Not only that, he's exhorting the church in Philippi to have the mind of Christ in Philippians 2:5. और फिलिपियों 2:5 में भी वो कलीसिया को उकसा रहा है कि वो परमेश्वर का, प्रभु का मन उनके अंदर हो, उसका स्वभाव उनके अंदर हो। This man Paul, at one point of time, is using his mind to devise schemes where to go, where to arrest Christians, put them in prison, and be instrumental in them being even stoned to death. और एक समय था जब पौलुस अपने मन में ये कल्पनाएं करता था कि किस तरह से मसीहों को पकड़े, उनको पथरवा करे, सताए, जेल में डाले। He was devising schemes as to where to go next and whom to arrest and put them in prison. Now he says we have the mind of Christ, his mind underwent total transformation. और यही पौल जो था, एक समय जब लोगों को पकड़ता था, मसीह लोगों को सताता था, जेल में डालता था, अब वो कह रहा है कि हमारे अंदर मसीह का मन होना चाहिए। ये बदलाव कैसे आया? Transformation of life is preceded by transformation of the mind. और जीवन के बदलने से पहले मन का बदलना जरूरी है। In the book of Romans chapter 12 verse 2 we read, don't conform along by the world, but be transformed by the renewing of your minds. रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। If we want to imitate the life of Christ, we must think like Christ. अगर हम मसीह के जीवन का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें मसीह की तरह सोचना भी है। Book of Proverbs 23 verse 7 says, as a man thinks, so is he. नीतिवचन 23:7 में लिखा है कि जैसा वह मन में विचार करता है, वह आप वैसा ही है। Christians neglect the role of the mind in the life of a Christian. और ब्रदर, Christians neglect the role of the mind in the life of a Christian. और मसीह लोग जो है, मन का जो एक मसीह के जीवन में जो मन का जो काम है, उसको वो नजरअंदाज कर देते हैं। Because nobody can read our minds. और क्योंकि उनके मन को कोई पढ़ नहीं सकता। People don't know our mind, what we think. लोग नहीं जानते इसके मन में क्या है, क्या सोच रहा है। But the Lord knows our minds. परमेश्वर हमारे मन को जानते हैं। In the book of Psalms 94 chapter 11 it says,
For God knows the thoughts of man, he knows they are futile. और भजन 94 और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर कहता है, दाऊद लिखता है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या हैं। So how can we have the mind of Christ? हम परमेश्वर का, प्रभु का मन हमारे अंदर कैसे आ सकता है? Before I talk about that, let me talk about what is not the mind of Christ. तो पहले कि हम इस बात में मनन करें, हम ये देखेंगे परमेश्वर का मन क्या नहीं कहता, क्या What are नहीं है। things that will not be occupying the mind of the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के मन में कौन-कौन सी बातें नहीं थी? So many unwanted thoughts bombard our minds. बहुत सारी व्यर्थ की बातें, बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं। From where do they come? ये सब कहाँ से आती हैं? They come from the evil one. ये दुष्ट की ओर से आती हैं। I don't believe evil one can read our minds, but can put thoughts in our minds. और ये विश्वास है कि हमारा कि ये दुष्ट जो है हमारे मन को पढ़ तो नहीं सकता, पर ये दुष्ट विचार हमारे मन में ज़रूर डाल सकता है। He can plant thoughts in our minds. हमारे मनों में अपने ऐसे विचारों को बो सकता है। Our minds are supposed to be upon the Lord Jesus Christ, but this evil one distract us from sincere devotion to Christ to make us focus on other things. और हमारा मन जो है प्रभु यीशु मसीह पे केंद्रित होना चाहिए, पर ये दुष्ट जो है इससे हमारा ध्यान हटा के बेकार की चीजों पे लगा सकता है। In 2 Corinthians 11 chapter verse 3, the Apostle Paul is expressing his concern for the church in Corinth. और दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में पौलुस जो है कलीसिया की, जो कुरिन्थ की कलीसिया है, उसके लिए एक चिंता व्यक्त कर रहा है। I'm afraid that just like Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind will led astray from a sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। What are those thoughts the devil puts in our minds? वो कौन से ऐसे विचार हैं जो शैतान हमारे मनों में डाल देता है? I'm going to talk about 7 thought processes. और ये 7 जो सोचने की प्रक्रिया है, इस पे आज मनन करेंगे। I just mentioned those thought processes, and then you talk about the solution about how to keep our mind clean. इन 7 बातों का हम वर्णन पहले बताएंगे और फिर हम ये देखेंगे कैसे हम इन बातों से अपने मन को शुद्ध रख सकते हैं। We will not have time to elaborate on these 7 points, but just mention it so that we are aware of it. समय की कमी के कारण हम हर एक बात पर विस्तार से तो नहीं जाएंगे, और उसका वर्णन करेंगे और उसके ऊपर उसका इलाज को हम देखेंगे। 7 thought process which should not be part of the mind of Christ. वो 7 विचार करने के तरीके जो प्रभु के अनुसार नहीं है। What are those thoughts? वो विचार कौन से हैं? Number 1, sinful thoughts. तो पहला है पाप वाले विचार, Number 2, anxious thoughts. चिंता वाले विचार, Number 3, discouraging thoughts. तीसरा निराशा वाले विचार, Number 4, futile thoughts. चौथा व्यर्थ के विचार, Number 6, worldly thoughts. Number 5, worldly thoughts. पांचवा संसारिक विचार, Number 6, bitter thoughts. छठा है कड़वे विचार, And number 7, guilty thoughts. सातवां है आत्मगिलानी वाले विचार। None of them are good for us. None of them is good for us. इस सातों में से कोई भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। When these thoughts come to us, we must take authority over those thoughts. जब ऐसे विचार आते हैं तो हमारे को इन विचारों पे अधिकार लेना है। One good news for all of us is that as Christians, we have been given authority over every thought that comes to us. और हमारे लिए बड़ी एक खुशी खबर जो है मसीहों के लिए, वो ये है कि हमारे को इन सब विचार, ऐसे जो विचार आते हैं उस पे हमारे को अधिकार दिया गया है। An unwanted thought coming to us is not our doing. It's never God's doing. जब बेकार के विचार जो जरूरत नहीं है वो आते हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आते। And not even from us. We don't want to enjoy sinful thoughts. We don't want to have anxious and discouraging thoughts. वो हमारे तरफ से भी नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ऐसे निराशा वाले और पाप वाले विचार हमारे मनों में आए। They will plant those thoughts in our minds. शैतान है जो ऐसे विचार हमारे मनों में बोता है। Don't feel you have sinned when these thoughts come to you. We don't feel you are sinning when the thoughts come to you. और हम इसको महसूस नहीं करते, जब ये विचार हमारे मन में आते हैं हम उसे महसूस नहीं कर पाते। Don't think they've sinned when these thoughts come to you. Only when allow the thought to multiply in the mind, you sin. इन विचारों को जब मन में आए तो उनको अपने जड़ ना पकड़ने दे, हम उसको मन में बढ़ने ना दें। The thoughts coming to us is not our doing, it's the devil's doing, so don't blame yourself for that.
ऐसे विचार अगर आते हैं तो उसके लिए अपने आप को दोषी ना करें, क्योंकि ये शैतान हमारे मन में डालता है। Only allow that to multiply in your mind, then only we are guilty of sin. जब हम इन विचारों को अपने मन में गुनाह बढ़ने देते हैं, तभी हम जो है उस पाप के हम उसमें हम उसके जिम्मेदार होते हैं। Isaiah chapter 55 verse 7 says, यशायाह 55:7 में लिखा है, let the wicked forsake his ways and the evil man his thoughts. दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। And all of us get bombarded by their thoughts day in and day out. और हम सब जो है दिन भर हमारे मनों पे ऐसे ऐसे जो बुरे विचार हैं, इनकी बम वर्षा होती रहती है। When they come to you, don't allow those thoughts to occupy your mind and don't think about that. Just throw them away. जब ऐसे विचार आए तो आप उसको अपने मन में जगह ना लेने दें, उसके बारे में सोचे ना, उनको निकाल के बाहर फेंकें। And for that, God has given us authority over our thoughts. और उसके लिए परमेश्वर ने हम अपने विचारों के ऊपर अधिकार दिया है। 2 Corinthians chapter 10, 3, 4 and 5, we read, you can read in Hindi, 2 Corinthians 10 chapter, 3, 4 and 5. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। God has given us spiritual weapons, not worldly weapons, spiritual weapons, परमेश्वर ने हमें संसारिक नहीं पर आत्मिक हथियार दिए हैं, which include authority over our thoughts. और हम इन इससे अपने विचारों के ऊपर हम उनको उस विचार अधिकार कर सकते हैं। You must be aware of the spiritual weapons God has given us. मुझे पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उन हथियारों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। In Ephesians chapter 6, verse 12 to 17, we know those weapons. We know we have the weapons. Very, very popular those weapons are. Helmet of salvation, और ये इफिसियंस 6 अध्याय उससे 12 से आगे हम जानते हैं उस सारे हथियारों के बारे में, जो कि उद्धार का टोप है, breastplate of righteousness, और धार्मिकता की झिलम है, belt of truth, और सच्चाई की कमरपेटी है, feet fitted with readiness to come to the gospel of peace, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं, shield of faith, विश्वास की ढाल है, and sword of the spirit is the word of God. और परमेश्वर के जो वचन है, जो उसकी दो धारी तलवार, आत्मा के वचन की तलवार हमारे पास है। Helmet, breastplate, belt, shoes, shield, and sword. All the spiritual weapons given to us for us to use against the devil. ये टोपी, झिलम, कमरपट्टी, जूते, तलवार, ये सब हमारे, और ढाल जो है, ये हमारे को दिए गए हैं कि हम शैतान का सामना कर सकें। But about over our thoughts also been given authority in 2 Corinthians 10 chapter verse 5. That somehow we miss out. और दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय में एक विश्वासी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारे पास विश्वास No, that what authority over our thoughts. अपने अपने विचारों के ऊपर भी अधिकार हमारे को दिया गया है। We can choose to think what we want to think. हम इस चुन सकते हैं कि हमें क्या सोचना है। And therefore, when these unwanted thoughts come to us, we rebuke them in the name of Jesus, and thereafter keep our minds on the things of God. और इसलिए जब ऐसे विचार आए तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको हटा दें और अपने मनों को जो स्वर की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, उस पे लगाएं। Our minds must be focused on the things of God. हमारा मन जो है परमेश्वर की बातों पे केंद्रित होना चाहिए। So after we rebuke all these thoughts that bother our minds, जब हम सारे विचार जो हमारे मनों को परेशान करता है उनको दूर कर देते हैं, we should let God's word go deep into our hearts and minds. तो हमारे को होने देना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने मनों में गहराई में जाने दें। In the Old Testament, in Jeremiah 31:33, the Lord says about how He's going to make a new covenant with His people. He'll write His law in their minds and put it in their hearts. और यिर्मयाह 31:33 में भी परमेश्वर कहता है कि मैं उन दिनों में इस्राएल के घराने के साथ एक जो वाचा बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। And that prophecy has been fulfilled according to Hebrews 8:10 in the New Testament. और इब्रानियों 8:10 में नए नियम में
ये जो प्रतिज्ञा थी ये पूरी होती है। Today, Lord wants to write those scriptures in our hearts and minds. और परमेश्वर जो है अपनी वाचा को, अपने वचन को हमारे हृदयों में लिख देना चाहते हैं। We should therefore let the Lord write the word in our hearts and minds. हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिख देने के लिए इजाजत देनी चाहिए, देना चाहिए। In Colossians 3:16, Paul writes, "Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom." और इफिसियों 3:16 में भी Colossians. कुलुस्सियों 3:16 में कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। So when these thoughts come to us, the 7 thought processes, rebuke the devil in Jesus' name, and thereafter go to scriptures as Holy Spirit write the word in our hearts and minds. तो जब ऐसे विचार आए तो प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर में हम जो अधिकार है उसे दूर करें और परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अपने हृदय में लिखने के लिए उसको इजाजत दें ताकि वो हमारे हृदय में लिखा जा सके। For every one of those unwanted thoughts, there is also antidote in the Bible. Antidote. ये सब जो बेकार के विचार हमारे मन में आते हैं, ये सातों के लिए वचन में उसका हमारे को इलाज भी दिया गया है। And then put away those thoughts and keep in mind the antidote for those thoughts. हमें ये सब विचारों को दूर करना है और जो इलाज वचन में दिया गया इन विचारों के विरोध में वो हमारे को याद रखना है। A week after next, I will speak on antidotes. अगले हफ्ते भाई जो है इसका जो इलाज के लिए जो हमारे को वचन में जो दिया गया है उसके बारे में हम मनन करेंगे। Not next week. Next week I'm in Kerala, in Maraman Convention. We won't have the meeting next week. I'll be in a convention, Maraman Convention. Week after next, I'll speak on antidotes for the unwanted thoughts of our minds. अगले हफ्ते तो भाई केरला में किसी सभा में है, उससे अगले हफ्ते जब हमारे बीच में आएंगे वचन देंगे तब इस बात पे हम विचार करेंगे। So we rebuke these thoughts and keep our minds on the things of God. तो हम इन सब बेकार की बातों को धिक्कार देते हैं, हटा देते हैं, अधिकार देते हैं, हम अपना अधिकार लेते हैं उनके ऊपर और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिखने की इजाजत देते हैं। When we keep our minds on things of the world, then we're giving the devil a foothold. तो जब हम संसार की बातों पे हम विचार करते हैं तो हम शैतान को अपने हृदय में पैर रखने की जगह दे देते हैं। The Lord had told the disciples how he's going to go to Jerusalem and be arrested and killed and rise from the dead. और प्रभु जब बता रहे अपने चेलों को कि हम यरूशलेम में जा रहे हैं, वहां उसको पकड़ा जाएगा और सताया जाएगा और मार दिया जाएगा। And Peter responds by saying, "Never, Lord, this shall never happen to you." पतरस एकदम से बोलते हैं कि प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा कभी नहीं होगा। That is 16th chapter of Matthew verse 22. मत्ती 16 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है। When he tells that to Jesus, look at the way Jesus responds. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको किस तरह से उसका उत्तर देते हैं। He tells Peter, "Get behind me, Satan. और प्रभु यीशु उसको कहते हैं, शैतान मेरे सामने से दूर हो, You're a stumbling block to me. मेरे लिए ठोकर का कारण है। You don't have in mind the things of God, but the things of men, not the things of devil, things of men." क्योंकि तो परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की, शैतान की नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। You keep in mind the things of this world, devil takes advantage and puts his thoughts in our minds. जब मनुष्य की बातों, संसार की बातों पे मन लगाते हैं तो शैतान उसका फायदा उठा के अपने विचार हमारे मन में डालने लगता है। The Lord told the disciples going to go to Jerusalem and be arrested. Only Peter said, "No, this shouldn't happen to you, Lord," as if he's the only one concerned about Jesus. तो जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यरूशलेम में जाएंगे, पकड़वाए जाएंगे, सताए जाएंगे, तो पतरस है सिर्फ वही बोलता है जैसे दिखाने के लिए कि मेरे को तेरी बड़ी चिंता है। He must have thought that Jesus would commend him for his concern for Jesus. वो सोच रहा होगा परमेश्वर मेरी तारीफ करेंगे सबके सामने कि मेरे को कितनी चिंता है इस प्रभु की। Others are keeping quiet. Only Peter says, "No, this shouldn't happen to you." सब तो चुप थे, बस पतरस ही बोलता है प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। He thought that Jesus commended him for his concern for Jesus' life. वो सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उसकी तारीफ करेंगे कि इसको मेरी कितनी चिंता है। What Peter told Jesus was against the will of God. Will of God was he has to go to Jerusalem, arrested, killed, and rise from the dead. और जो पतरस ने बोला परमेश्वर की इच्छा के विरोध की बात थी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये थी कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जाए, पकड़े जाए, सताए जाए, मारे जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। And the Lord knew that the motivation for him to say that was the Satan who put thought in his mind of Peter. और प्रभु जानते थे कि ये जो जिस मनसा से बोल रहा है, ये विचार जो इसके मन में आया, ये शैतान ने इसके मन में डाला। And he tells him, "Get behind me," Satan is addressing Satan through Peter. और इसलिए परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह शैतान को संबोधित करते हैं पतरस के द्वारा से कि शैतान मेरे से दूर हो जा। Then he addresses Peter.
फिर पतरस को भी बोलते हैं, You don't have in mind the things of God, but the things of men. और तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। You must have always in mind the things of God. हमारा मन जो है हर समय परमेश्वर की बातों पे लगा रहना So चाहिए। these all thoughts are not from God. ये सारे विचार जो हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है, They're not part of the mind of Christ. ये मसीह के मन की बातें नहीं है। So what is the mind of Christ? What does Christ always think about? तो मसीह किस बातों के बारे में हर समय सोचते हैं? He's totally preoccupied in doing the will of the Father. प्रभु यीशु मसीह का मन हर दम इसी बात पे लगा रहता कि किस तरह से अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। In John 4:34, he tells the disciples, my food is to do the will of him who sent me and finish his work. और यूहन्ना 4:34 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। That was his food, to do the will of the Father. तो ये मेरा भोजन है। In the same way, you and me must be totally preoccupied in doing the will of God in our lives. इसी तरह से आपको और मेरे को भी पूरी तरह से इस बात में लगा रहना चाहिए कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन से पूरी होती रहे। Never get distracted. कभी भी अपने मन को भटकने ना दें। Our hearts and minds should be on the things of God. हमारा मन और हृदय हर समय प्रभु की बातों पे लगा रहना चाहिए। In the book of Colossians, chapter 3, verse 1, 2, and 3, Paul writes, और कुलुसियों उसका 3रा अध्याय पहली 3 आयतों में हम पढ़ते हैं, since you've been raised with Christ, set your hearts and things above, by Christ at the right hand of God. और सो तुम मसीह के साथ अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। Set your minds on things above, not on earthly things. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। For you died, and your life is now hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, who is your life, appears, you'll appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। When hearts and minds are on things of God, on the word of God, on his will in our lives, then heart and mind both are clean. जब हमारा मन और हृदय दोनों परमेश्वर की बातों पे लगा रहेगा तो हमारा मन और हृदय पवित्र रहेगा। In John 15:3, Jesus told the disciples, यूहन्ना 15:3 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, you're already clean because of the word I have spoken to you. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। The word of God cleanses, the word of God heals. परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। The word comes to heart, heart is cleansed. Word comes to mind, mind is cleansed. जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब हमारा परमेश्वर का वचन हमारे मन में आता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। The Lord told the Father in heaven when he prayed in 17th chapter of John, verse 17, और यूहन्ना 17:17 में जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे थे, बोलते हैं, he prayed for the disciples. उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी, Sanctify them by the truth, your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। So God's word cleanses the heart and mind. Whatever thoughts are there in the heart or mind, they go away as God's word goes deep into our hearts and minds. और जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, मन में, गहराई में उतरता है, ये सारा हमारा मन और हृदय दोनों पवित्र हो जाता है और बेकार की बातें सब निकल जाती हैं। Now, during the day, we are involved in so many things. हम दिन भर में बहुत सारी बातों में लगे रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं। Our mind's on so many things. हमारा मन बहुत सारी बातों पे लगा रहता है। We do our work in the office, we work, our mind should be on the work. हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, हमारा मन ध्यान जो है अपने काम में लगा रहता है। We spend time at home, our mind is upon things, the domestic work that we have to do. हम घर में आते हैं, हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, हमारा ध्यान उस पे लगा रहता है। So mind is not always on God's word. पर हमारा मन जो है वो हर समय परमेश्वर की बातों पे लगा रहना चाहिए। Now, after you finish the day's work and about to sleep at night, when you lie in bed, what do you think about? जब हम दिन भर का काम हमारे खत्म हो जाते हैं और बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाते हैं, तो हम किन बातों पे विचार करते हैं? What do you think about when you feel to think what you want to think? हम उन बातों विचार करते हैं हमारी आजादी होती है, हम किसी भी बात पे विचार कर सकते हैं। What do you think about when you feel to think what you want to think? तो आप जब
आजाद हैं सोचने के लिए, कुछ भी सोच सकते हैं, तो आप उस समय क्या सोचते हैं? Now, Bible talks about people in the book of Micah, chapter 2, people who, when they lie in bed, they plan iniquity. और मीका 2 में परमेश्वर कहता है कि ये लोग जब बिस्तर पे लेटते हैं, तो व्यर्थ की कल्पनाएँ करते हैं। What are those who plan iniquity, who plan evil on their beds? और वो कहता है कि हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। Who plot iniquity, who plan evil on their beds. At morning, they carry out because they have power to do it. वो कहता है और ये रात में तो बुराई की कल्पना करते हैं, दुष्कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर के दिन निकलते ही उसे पूरा करते हैं। So at night time, you are free to think what you want to think. तो रात में हम आजाद हैं, जो सोचना चाहें सोच सकते हैं। Micah chapter 2 verse 1 and 2, it talks about that. So when you are lying in bed, what do you think about? मीका दूसरा अध्याय पहली 2 आयतें इस बात को बताती हैं। तो आप जब बिस्तर पे लेटे हैं, आप क्या कल्पनाएं करते हैं? That's what we should not be doing, thinking about evil things. और ये हमें नहीं करना चाहिए बेकार की बुरी बातों की कल्पना करते रहना। What's the opposite of that? उसका विपरीत क्या है? That's found in the book of Psalm 63 chapter verse 6. और उसका विपरीत हम देखते हैं भजन 63 उसकी 6ठी आयत में। On my bed I remember you, I think of you to the watches of the night. जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात को के एक-एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। So when the mind is free to think what you want to think, what do we think about? Things of God or things of the world? हम आजाद हैं, कुछ भी सोचने के लिए आजादी हमारे पास है, तो हम क्या सोचते हैं? संसार की बातों पे या परमेश्वर के वचन की कल्पना करते हैं? That विचार will करते हैं। decide how our life is going to be. वो इस बात पे हमारा जीवन कैसा होगा, वो इस बात पे निर्भर होता है। As a man thinks, so is he. जैसा मनुष्य कल्पनाएं करता है, वैसा ही वो होता है। The Lord is fully occupied in thinking about the will of God the Father in his life. अब यीशु मसीह का पूरा ध्यान पिता की इच्छा पूरे जीवन में करने पे ही लगा रहा। That was his food. वो उसका भोजन था। How did the Apostle Paul confidently say, we have the mind of Christ? पौलुस कैसे इस बात को बड़े हियाव से कह सका कि हमारे में मसीह का मन है? Did not happen overnight. एक ही रात में तो ऐसा पूरा नहीं हो गया होगा। In 1 Corinthians chapter 2 verse 16 he says, we have the mind of Christ. पहला कुरिन्थियों 2:16 में वो कहता है हमारे प्रभु का हम में मसीह का मन है। So verse 9 onwards we read how he went about having the mind of Christ. How did it happen? It didn't happen overnight. Over a period of time it happened. और 9वीं आयत से हम अगर पढ़े तो हमें समझ में आता है कि कैसे ये उसके जीवन में ये एक ही झटके में एक ही रात में ऐसा नहीं हो गया था। The 16th verse talks about we have the mind of Christ. 16वीं आयत कहती है कि हमारे मसीह का मन है। His life was transformed. उसका जीवन बिल्कुल बदल गया था। His mind was transformed. मन बिल्कुल बदल गया था। From verse 9 of that chapter we read, 9वीं आयत से अगर हम उस अध्याय की पढ़ते हैं, वहां देखते हैं, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. और जो आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी हैं, वे हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। But revealed to us through the Spirit. और ये अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। The Spirit searches all things, even deep things of God. क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी हमें समझाता है। So who among men know the thoughts of man except the spirit of man? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। The same way no one knows the spirit of God except thoughts of no one knows the thoughts of God except the spirit of God. वैसे ही परमेश्वर की बातें जो भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। Even is the spirit of this world, we receive the spirit of God that we understand what is given us. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों पर को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। Man with the spirit doesn't know the things that comes from God. Can't इसने understand. हम मनुष्य के ज्ञान को सिखाई हुई बातें इनमें नहीं, परंतु आत्मा की सीखी हुई बातें हैं। आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। Goes on to say, this is what we speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit. तो परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और वे ना उसे जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। The spiritual man makes judgment about all things, he himself not subject to any man's judgment. और आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता।
And he goes on to say how in the Old Testament time, he's quoting a verse from Old Testament. Who has known the mind of the Lord, he may counsel him. और वो फिर पुराने नियम की इस बात को यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर के मन को किसने जाना है, Then he says, we have the mind of Christ. और किसी ने उसे सिखाया। फिर वो कहता है कि परंतु हम में मसीह का मन है। The Old Testament time, people didn't understand the mind of God. Today we can have because Holy Spirit reveals to us. पुराने नियम के लोग जो थे परमेश्वर के मन की बात को नहीं जान सकते थे, पर हमारे को ये आदर मिला है क्योंकि हमारे पे परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है। So when you live by the Spirit, be guided by the Holy Spirit's teaching and His counsel, then all these negative thoughts go away and the Holy Spirit speaks to us and heals our minds. जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम अगुवाई में चलते हैं, उसकी सिखलाई में चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सब बात सिखाता, आत्मा में सिखाता है और हमारे मन को और हमारे हृदय को चंगा करता है। In Psalm 107 verse 20 is written, He sent forth His word and healed. वचन 107 उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि वो अपने वचन को भेज के हमें चंगा करता है। Who brings the word of God to us? परमेश्वर का वचन हमें कौन ला के देता है? The Holy Spirit. परमेश्वर का आत्मा। In John 16:14, Jesus spoke about the Holy Spirit. और यूहन्ना 16:14 में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी के बारे में बात करते हैं। He'll bring glory to me by taking over his mind and making it known to you. वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। So when we live by the Holy Spirit, He'll bring God's word to us, make us understand God's word. He'll teach us, remind us, and give us words to speak. हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का वचन लाके हमें सिखाएगा, बताएगा और हमें बताएगा क्या बोलना है, किस तरह से सोचना है, क्या करना है। As we live by the Holy Spirit and the word and by faith, slowly but surely we develop the mind of Christ. जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, विश्वास से उसके द्वारा चलते हैं, तो हम धीरे जरूर होगा, पर इस बात का निश्चय है कि हमारे अंदर परमेश्वर का मन जो है वो आ जाएगा। After we turn to Christ, they are called to live by the word of God. Matthew chapter 4 verse 4. जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो हमारे को बताया गया कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं, जैसे मत्ती 4:4 में लिखा है। We're supposed to live by the Spirit of God. Galatians 5:16. और गलातियों 5:16 के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। And live by faith. Romans 1:17. रोमियो 1:17 के अनुसार हमें विश्वास से जीना है। That's our life. ये हमारा जीवन है। Christ should be our life. मसीह हमारा जीवन होना चाहिए। The Apostle Paul writes to the Philippians in chapter 1 verse 21. फिलिपियों 1 उसकी 21वीं आयत में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हैं, For me to live is Christ, to die is gain. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। As we hear the word of God, read the word of God, put in practice, our faith increases. जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं और उसके विश्वास से उसके ऊपर चलते हैं, तो हमारा जो है वो मन में हमारे ऊपर में विश्वास में हम बढ़ते चले जाते हैं। Who brings the word of God to us? The Holy Spirit. और परमेश्वर का वचन हमारे पास कौन लेके आता है? परमेश्वर का आत्मा लेके आता है। He uses people, his children he uses, no doubt. और परमेश्वर अपने लोगों को प्रयोग करता है उस वचन को हमारे तक पहुंचाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। Through God's people have been given the gift of teaching and preaching. Holy Spirit speaks to us. और परमेश्वर ने जिन लोगों को ये दान दिया है वचन को शिक्षा देने का, उनके द्वारा से परमेश्वर का वचन हमारे तक पहुंचता है। And as we receive the word, our faith increases. और जब हम उस वचन को स्वीकार करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। And through faith we obey God, obey the word of God. विश्वास से हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचन को मानते हैं। In that process, our minds and hearts are cleansed of all these unwanted thoughts and which even affect our hearts. और इस प्रक्रिया से हमारा मन और हृदय जो शुद्ध होता है, इन सारे विकार के विचारों से हम दूर हो जाते हैं। All of us as believers in Christ, we can live by these three amazing resources: word, spirit, and faith, and fellowship of God's people also. और हम सब जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचन, उसकी आत्मा और विश्वास के द्वारा से हम जी सकते हैं, और परमेश्वर के लोगों की संगति के द्वारा भी। The first century, why did God give these 5 kinds of ministries to the church? परमेश्वर ने क्यों पहली शताब्दी की कलीसिया को 5 तरीके के दान दिए थे? Ephesians chapter 4 verse 11 onwards it says, He gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, to prepare God's people for works of service. Ephesians 4:11 में
वो कहता है कि कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है। As we hear the teaching of God's word being taught, and as we read the Bible ourselves, our faith increases, and therefore we can be very sure that over a period of time, all the unwanted thoughts and minds will all go away because word of God cleanses. तो परमेश्वर के वचन को सुन के, परमेश्वर के वचन को पढ़ के, हम इस ये वचन हमारे हृदय में गहराई में जब जाता है, तो हमारे विचार, हमारा मन और हृदय दोनों शुद्ध हो जाता है, पवित्र होते चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन परमेश्वर के अनुसार हो जाते हैं। If we love the Lord, we will love His word जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसके वचन से भी प्रेम करेंगे, because that's how He speaks to us. क्योंकि उसके द्वारा से ही परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। You love someone, you want to hear that person's voice. जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उससे उसकी आवाज सुनने का हमारे को दिल करेगा। If you love God, you want to hear His voice. जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी आवाज सुनना पसंद करेंगे, And God's word is His voice. और परमेश्वर का वचन उसकी आवाज है। So give your mind to the Lord. Let your mind be totally occupied by His instructions, His word, instructions, His promises, and the standards He wants us to live by. और तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी वचन को, उसकी आज्ञाओं को, हिदायतों को हम सुनेंगे और उसके अपने जीवन को उसके अनुसार जिएंगे। God bless you all, and we'll meet again week after next, where I'll talk about the antidotes for all the unwanted thoughts. और अगले हफ्ते से अगले हफ्ते जब भाई मिलेंगे हमने, तो फिर हम मनन करेंगे इस जो बेकार के सारे 7 विचार हैं, इनका हम बाइबल के अनुसार क्या इलाज हमारे को परमेश्वर के वचन में मिला है, उस पे मनन करेंगे।